And I would request my team to show our audience a short video about UVCAN so that it gives you a better idea of the kind of work that we do. Can we have the video, please? The biggest challenge is that the underprivileged don't have the money to get treated. We are committed to save as many lives as we can. I was, peak of my career. Won the World Cup. Was man of the series. India won after 28 years. It was like a dream come true, and then it was like falling from the sky. But the worst part was to come to terms with it. I was an athlete and someone who is training and eats well, thinks that he's untouchable. Nothing can go wrong with him. It was hard. Emotionally, I was a bit down. It's a battle, a self battle where you're trying to overcome. But then after going through cancer, I felt the pain. I thought that I want to help people get through this. Almost 11 lakh people every year diagnosed with cancer. The biggest challenge is that the underprivileged don't have the money to get treated. So I just thought that underprivileged is a section where I can really help people to get treated. UVCAN Foundation helps people in 4 ways: spreading cancer awareness and screening. We provide financial assistance to patients who are below 16 years of age. Through the UVCAN scholarship, we provide financial assistance to cancer survivor children from marginalized backgrounds. They are supported on a year-on-year basis till the time they complete their education. When children go through cancer, parents lose a lot of their funds treating their children, and sometimes they don't have funds to give them education. They say that the child has had cancer. I don't think he has any future. And I totally disagree with that because I'm a prime example of coming out of cancer and being at my best. And that was the whole purpose of giving scholarships to young children who come out of cancer, and I want them to have a better future. We need your help so that we can support cancer treatment of many children and save precious lives. I really hope that you will support these children like you have supported me. Together we can, and we will fight cancer. Thank you, team. So that was a little bit about the foundation. And also let me tell you that maybe some of you are aware of the fact that, when COVID struck, we decided to change gears. Everyone knows what happened in 2020. And to say that we were prepared for it would really be kidding ourselves, because nobody in the world knew what was happening to them. And we are all aware as to what happened in India. We ran short of ICU beds. There was no oxygen. There was no ventilators. Each one of us, including Yuvraj, I think, suffered in some way or the other. And I think we still have goosebumps when we think of the times that, you were not so worried about getting COVID, but you were more worried कि अगर हो गया तो करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ? And there were so many people who called up and said, that we have I know the MP, I know the MLA, I know so and so, but I'm just not able to get a ICU bed for my mom or my dad or, whoever it was. So it was at this point of time that UV and the team came together and they said, let's do something. And that's when we decided that we will do Mission 1000 beds and support different hospitals in enhancing their capacity by 10%. And we are very, very proud to say that this was an operation that was, sort of carried on like almost like a war, because it needed immediate attention. And the whole team got together and we got immense support from the corporate world. And I'm so proud to tell you that as I speak to you, Faridkot was our last destination, and Mission 1000 is at the stage of being done and delivered. So I'd like my team to share a short video about the Mission 1000 beds so that it gives you an idea of the kind of work that we did during the COVID period. Rishabh, can we have the video, please?
Thank you. Well, that was Mission 1000 Beds, and I'm sure it gave you a little glimpse of the kind of work that we've been able to do. And now coming back to World Cancer Day, today is 4th of February, and cancer is what we are going to talk about. And we have the proud privilege of having Dr. Anshuman with us, who's the Director and Chief Surgeon at Dharamchilla Hospital. Namaskar, sir. Welcome to this program today. So, sir gave us a short introduction about himself, but I would also like to tell you a couple of other things. That Dr. Anshuman has several gold medals for his academic achievements, and he's done thousands of surgeries. I am sure he will tell us how many he has done. His profound knowledge and powerful expertise has enabled him to develop several clinical and surgical techniques. That is about the doctor, about his excellence. But here is a review from one of the people. I was just searching Dr. Anshuman's profile, and he says, I have not met in my life a doctor as competent and as sympathetic as Dr. Anshuman. He is so convincing and so caring during his conversation with his patients that if I had taken my patient well in time, I'm sure he would have got rid of the disease completely. Dr. Anshuman, that speaks of the kind of person you are, not just because of your skills, but because of the great human being. क्योंकि आजकल डॉक्टरों के पास स्किल बहुत है लेकिन समय बहुत कम है लोगों से बात करने का, और इसको पढ़ के मेरे को इतना अच्छा लगा कि आप सिर्फ अपनी स्किल ही नहीं बांटते हैं लेकिन अपना टाइम भी अपने पेशेंट्स के साथ बांटते हैं. तो थैंक यू सो मच. और आपने हमें सपोर्ट किया, पुलिस वेलफेयर को सपोर्ट किया आज यहाँ आने के लिए. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू एंड आई डोंट वांट टू ईट अप इनटू एनी मोर ऑफ योर टाइम. So over to you for your presentation and your interaction with the audience. Thank you so much for being here. Thank you, ma'am. Thank you for interaction and introduction to start with. And this year, World Cancer Day, on World Cancer Day, the theme of the World Cancer Day is close the care gap. Meaning is there are a lot of discrepancies between care given and care delivered actually. And this time, क्योंकि मैं बार बार कहता था टेलीविजन पे, ये वर्ल्ड कैंसर डे पे सांकेतिक नहीं होना चाहिए. डोंट डू इट सिंबॉलिकली. वर्ल्ड कैंसर डे ने इस बार डिसाइड किया 3 साल के लगातार इस थीम को चलाएंगे. कोशिश ये होगी कि अवेयरनेस, स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट अक्रॉस सिटी, अक्रॉस विलेजेस, शहर से गांव तक पहुंचाने की कोशिश है. ये थीम है इस बार. देखते हैं. कोशिश इसीलिए हमारी है कि पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हिंदी प्रेफर करेंगे सुनना. इसलिए मेरी कोशिश ये है कि हिंदी में, अंग्रेजी हमारी वर्किंग टूल है, भाषा नहीं है. हिंदी भाषा है जो भारत में बोली जाती है. और जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं शायद नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, तो कभी वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं हिंदी की तरह. और वेजिटेरियन जो प्योर वेजिटेरियन, उनके लिए नॉन वेज परोसा नहीं जा सकता. इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मिक्स मैच थियरी पे बात कर लें. दूसरी जो मैडम बता रही थी, पूनम मैम बता रही थी युवराज के बारे में, वो दिन मुझे याद है. संडे का दिन था. मैं सुबह अपनी कुकिंग करके खाना बना के मैं निकल रहा था अपने खेत पे जाने के लिए. तभी मीडिया वालों को फोन आया कि सर ब्रेकिंग न्यूज है, युवराज सिंह को कैंसर हो गया है, आप कहाँ पे हैं. मुझे याद है भी DND वाला जो हाईवे है उस पे मैं रुक के वहां पे 2-4 लोगों को इंटरव्यू पहले दिया. उसके बाद मेरा खाना ऐसे रखा रह गया, खेत पे भी नहीं गया. शाम हो गई, 6:30-7 बज गए और एक स्टूडियो से दूसरी स्टूडियो जाता रहा. मेजर कंफ्यूजन उस समय क्या था, लोगों ने चला दिया था लंग कैंसर हो गया, और बिल्कुल गलत था. एक्स्ट्रा गोनेडल जर्म सेल ट्यूमर था. इसको क्लियर करते करते होता क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड, जैसे लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, आनंद फिल्म का, लगता था बड़ा भारी भरकम है क्या समझ में नहीं आ रहा है. एक्स्ट्रा गोनेडल जर्म सेल ट्यूमर था जिसका किसी लाइफस्टाइल से कोई मतलब नहीं था, जैसे अनु मैडम कह रही थी. बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है. ये कंजेंटल रिमेनेंट ऑफ जर्म सेल से ही होता है. इस कोई लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो, किसी को, एक थ्योरी है कैंसर में, 2 हिट हाइपोथेसिस. एक बच्चा जब माँ के पेट में गर्भ में पल रहा होता है और बाद में जब पैदा होता है उसके बाद अगर हिट हो जाए उस सेल पे तो ये डेवलप होता है. तो इसलिए इसी से मैं शुरुआत करता हूँ. आज कोशिश यही रहेगी, कुछ बातें मैं कैंसर की करूंगा लेकिन ज्यादा बातें मैं स्वास्थ्य की करूंगा. स्वास्थ्य की बातें कोई कर नहीं रहा है. हमारा मंत्रालय भी बना हुआ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेकिन बातें करता है बीमारी की. तो बीमारी की बातें नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसका मिनिस्ट्री ऑफ डिजीजेज कर देना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं रखना चाहिए. तो आज स्वास्थ्य की बातें करेंगे. इसी में शुरू करता हूँ.
मैंने टॉपिक इसीलिए रखा है, नो योर लाइफ इन लाइफस्टाइल। अपने जीवन और जीवन शैली को आप समझें। इसके लिए जो मैम मार्केटिंग डिवीजन से थी, उनके लिए पहली स्लाइड है मास्लोज नीड हायरार्की थियरी। मास्लो जो ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, और उसने एक थियरी दी थी कि पिरामिड है जिसमें इफ यू अचीव द फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें खाना, पानी, हवा, नींद सारी पूरी हो गई, तो सेकंड स्टेप है सेफ्टी, सिक्योरिटी, आप डिमांड करते हैं। थर्ड स्टेप है लव, बिलोंगिंगनेस। फोर्थ है सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट। और क्योंकि आज ऑडियंस में अधिकतम लोग हैं जो इन्होंने चारों सीढ़ियां अचीव कर ली है, उनका स्टेट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें आपका मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रिजुडिस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट। कैंसर भी यही कहता है, एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, बीमारियों से बचेंगे, अपने लिए, फिर अपनी फैमिली के लिए, फिर अपने समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। यही मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी कहता है। तो आप लोग टॉप स्टेज में हैं। टीवी मीडिया भी अब रियलाइज कर रही है इन चीजों को कि किस तरह से फिट रहो, इसका मिशन फिट रहो प्रोग्राम चला रहे हैं। पॉलिटिकल डिबेट से हट के कुछ काम की बातें भी ये करने लगे हैं। हेल्थ, WHO डिफाइन करता है, हेल्थ इज नॉट जस्ट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। और हमारे सुश्रुत संहिता आयुर्वेद में लिखा है, सम दोष समग्नि सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब शरीर की सारी चीजें आपकी सम अवस्था में हो जाएं, जिसमें टेक्निकल है दोष, अग्नि, धातु, मल, क्रिया, तो आप स्वस्थ हैं। अगर इस तरह के स्टेज में आपका जीवन है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, कैंसर, ये सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जीवन शैली संबंधित 4 बीमारियां टॉप की हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड कैंसर। हाइपरटेंशन काफी कॉमन है, डायबिटीज, हार्ट अटैक एंड एम्पायर ऑफ ऑल द मैलेडीज, कैंसर। पहला सवाल जब लोग मुझसे मिलते हैं यही पूछते हैं, कैंसर क्या है? इज इट अ कर्स, अभिशाप है? हमने कोई गलती कर दी, क्या हुआ? आंसर इज वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड द डिजीज। बिल्कुल स्लाइड के लेफ्ट साइड में पहली तस्वीर नॉर्मल सेल्स की है। नॉर्मल कोशिकाएं जो होती है शरीर की, आप इमेजिन करें घर है, घर का एक कमरा है, कमरे में जो दीवार बनी है उसमें ईंटें लगी होती है। एक सेल एक ईंट के बराबर है, कई ईंटें लगाती हैं, एक दीवार तैयार, और कई दीवारों को मिला के घर हमारा तैयार होता है। ये हमारा शरीर है। इसमें से अगर कुछ सेल्स एबनॉर्मल हो जाए, पर्पसलेसली बढ़ने लगे, बिना उद्देश्य के, इमोर्टल हो जाए, मरने की क्षमता इसमें खत्म है। नॉर्मली सेल्स मर जाते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल 120 दिन में मर जाता है, और ये सेल मरने की क्षमता खो दे और ग्रो करने लगे, एक अंग से दूसरे अंग में जाने लगे, यही कैंसर है। मतलब कुछ भी बाहर से नहीं आया, आपके शरीर के उसी अंग का सेल, कोशिका बेतरतीब बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ने लगे। इंडक्शन, इसको सिग्नल कहीं बाहर से मिल सकता है, जिसको हम करते हैं कार्सिनोजेनिक सिग्नल। इसको अगर साधारण भाषा में हम समझें, ऊपर लेफ्ट में ऊपर की तस्वीर है, मिलियंस ऑफ पीपल सिटिंग टुगेदर ओबेइंग लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। इसी में से कुछ आतंकवादी हो गए, टेररिस्ट हो गए, ये बिहेव करने लगे एबनॉर्मली, ग्रो करने लगे, अपने लोगों को मारने लगे, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जाने लगे, मेटास्टेसिस, यही कैंसर है। दूसरा सवाल मुझसे पूछा जाता है, क्या कैंसर ठीक हो सकता है? आंसर इज वेरी सिंपल, यस, इफ डिटेक्टेड अर्ली। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन इज द आंसर फॉर अर्ली डिटेक्शन। जागरूकता की जरूरत है, 2 लोगों को जागरूक होना है, डॉक्टर को और हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति को क्या जागरूक होना है? कभी भी कोई असामान्य लक्षण आपको महसूस हो, उसको लाइटली नहीं लीजिए। असामान्य लक्षण मैं बताता हूं क्या क्या हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो आज तक आपके जीवन शैली में नहीं हो रही थी, पूरे दिनचर्या में नहीं थी, आज होने लगे, ये असामान्य है। उदाहरण के तौर पे, कोई भी शरीर में गठान या सूजन का हाल फिलहाल में निकलना, लंप या स्वेलिंग, घाव या छाला जिसको हम नॉन हीलिंग अल्सर कहते हैं, अपाचन, अम्ल की शिकायत, इंडाइजेशन और एसिडिटी, खाना खाने में अटकने लगे, डिस्फेजिया, लंबी खांसी, आवाज में बदलाव, महिलाओं में खास करके रक्तस्राव, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल होने लगे, एबनॉर्मल टाइम पे होने लगे, लंबे समय तक चलने लगे या कॉन्टैक्ट के समय होने लगे, वजन का कम होना, ये सब कॉमन लक्षण है जिससे कैंसर प्रेजेंट करता है।
धूम्रपान करने वालों में लंबी खांसी, बलगम के साथ खून आना या आवाज में बदलाव। तीसरा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है, वैकल्पिक इलाज, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। आप समझ सकते हैं कि इसकी तरफ मेरा संकेत है। कोई भी व्यवस्था अल्टरनेटिव नहीं है, इसकी एविडेंस नहीं है और न ठीक हुआ है कोई मरीज, इसलिए इस पे गुमराह नहीं होना है। कुछ केसेज है नेग्लेक्टेड केसेज, उन्हीं के द्वारा इन मेरा भारत महान, दीज आर द नेग्लेक्टेड केसेज। मैं 5 टॉप के जो कैंसर्स हैं इंडिया में, उनके बारे में ब्रीफ बता देता हूं, फिर मैं आऊंगा लाइफस्टाइल पे। माउथ कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं स्मोकिंग, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, सिगरेट, बीड़ी, च्यूइंग टोबैको, गुटखा, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको। एस, फर्स्ट एस याद रखना, 5 एस क्या क्या रिस्क फैक्टर है। सेकेंड एस इज स्पिरिट, दैट इज अल्कोहल। थर्ड एस इज शार्प टीथ। बहुत लोगों को डेंटल हाइजीन या ओरल हाइजीन, ओरल ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं है। कहीं भी कोई दांत पैना हो, नुकीला हो, चुभता हो, काटता हो, इस पे केयर करना है, ये कैंसर का रिस्क फैक्टर हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16, 18, sanitation, poor oral hygiene may be a factor for cancer. गुटखा, सिगरेट, तंबाकू पे कहा जाता है 365 डेज सेल लगा हुआ है। यूजुअली लोग स्टार्ट करते हैं किक के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है वो जिंदगी को किक मार रहे हैं जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। सेल में इसलिए कहता हूँ, एक सिगरेट को अगर देखें, इसकी एनालिसिस करें, हिटलर ने जर्मनी में एक फैक्ट्री, एक लेबोरेटरी बिठाई थी और ये चेक करने के लिए सिगरेट में देखो क्या क्या तत्व हैं। उसी से पता चला 40,000 केमिकल्स, आउट ऑफ दैट 40,000 केमिकल 4,000 आर हार्मफुल, आउट ऑफ दैट 4,000 40 केमिकल्स आर कैंसर फॉर्मिंग। तो सिगरेट डेफिनेटली कैंसर फॉर्मिंग है। उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया जो इसमें मिलता है, जो आपके टॉयलेट क्लीनर में होता है, रॉकेट फ्यूल में होता है, मिथेन सीवर गैस में होता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलती है जो कैंसर फॉर्मिंग है। शार्प टीथ, इस तरह से पैने या नुकीले दांत आपके हैं और इस तरह से जख्म बार बार बनता है, ये कैंसर का कारक हो सकता है। इन्फेक्शन, HPV 16, 18, पुअर ओरल हाइजीन। इस तरह का अगर छाला दिखे, खास करके पुलिस फैमिली में तो शायद कम हो, कुछ पुलिस वालों को मैं जानता हूं जो तंबाकू या सिगरेट लेते हैं, अगर इस तरह का छाला उनके मुंह में दिखे, वार्न कीजिए, उनका टेस्ट कराइए, इसको रोक सकते हैं। मुंह कम खुलने लगे, टेक्निकली वी कॉल इट ट्रिस्मस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, प्रीडिस्पोजिशन फॉर कैंसर। दांत हिलने लगे या दांत गिरने लगे, इट मे बी रीजन फॉर कैंसर। सेकेंड कॉमन कैंसर लंग कैंसर है, खास करके जो स्मोकिंग करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली NCR में रहने वाले, एयर पोल्यूशन से एक्सपोज्ड, उनमें भी लंग कैंसर काफी बढ़ा है। कॉमन लक्षण जो लंग कैंसर है, कफ, परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 3 वीक्स। अगर किसी को खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा समय से हो रही है, जरूर जांच कराएं। बलगम निकलता हो, खास करके उसमें खून आता हो, सांस लेने में दिक्कत हो या आवाज में बदलाव, या लंबे अरसे तक अगर ये तकलीफ रह गई तो वेट लॉस, ये कॉमन लक्षण है। लंग कैंसर यूजुअली एक्सरे चेस्ट या CT स्कैन से डिटेक्ट होता है। अभी भी 100 में से 40 केसेज लंग कैंसर के मेटास्टेसिस मतलब स्टेज 4 लेके प्रेजेंट करते हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। थर्ड कॉमन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंड इट हैज बिकम मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेट्रो सिटी। यूजुअल प्रॉब्लम जो लेडी लेके प्रेजेंट करती है, लम्प, पेनलेस लम्प इन द ब्रेस्ट, पेनफुल नहीं होता है। जो ये सोचते हैं पेनलेस लम्प है, हार्मलेस है, ऐसा नहीं है। पेनलेस लम्प ज्यादा हार्मफुल है। पेनफुल लम्प यूजुअली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। स्वेलिंग इन द ब्रेस्ट, change in the size of the breast, dimpling or puckering of the skin, itchy skin, or pulling of the nipple or areola, it may be symptom of cancer. क्या ट्रिपल पिलर है ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने का? क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय एन ऑन्कोलॉजिस्ट, बायोलेटरल सोनोमैमोग्राम जो एक्सरे अल्ट्रासाउंड को मिला के बोलते हैं, और FNAC एक सुई की जांच होती है। ये तीनों से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये लंप जो डिटेक्ट हो रहा है कैंसरस है कि नहीं। तीनों बिल्कुल OPD बेस्ड टेस्ट है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन US में ऑब्सोलीट कर दिया गया है, इसकी जरूरत अब नहीं है, क्योंकि वहां स्क्रीनिंग 100% केसेज में कर रहे हैं। इंडिया में स्क्रीनिंग अभी भी अनकॉमन है, इनएक्सेसिबल है, इसलिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आज भी इंडिया में वैलिड है। पैड ऑफ द फिंगर जो तस्वीर में आप देख रहे होंगे, पैड ऑफ द फिंगर से करना है, पिंच नहीं करना है थंब और फिंगर के बीच में, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पैड ऑफ द फिंगर से ब्रेस्ट को इस तरह से सर्कल के तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टेस्ट करना है। सिटिंग, स्टैंडिंग
एन आइडियल टाइम इज जब आप बाथ लेने जाते हैं, सोप या जेल लगाते हैं। कब करना है? पोस्ट मेनोपॉजल लेडी को जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो चुका है, कोई भी एक डेट फिक्स कर लें, चाहे तो महीने की पहली तारीख या जो भी उनका बर्थ डेट है, हर महीने को उसी बर्थ डेट को फिक्स कर लें, उस दिन टेस्ट करें। जो प्री मेनोपॉजल हैं, पीरियड्स शुरू होने के 6 से 14 दिन के बीच एक डेट फिक्स कर लें। पीरियड जब शुरू होता है उसके 7वें दिन, 8वें दिन, कोई भी एक डेट फिक्स करें, उसी दिन हर महीने एग्जामिन करें। रीजन ये है कि पूरे पीरियड्स के दरमियान ब्रेस्ट का साइज, शेप, कंसिस्टेंसी सब चेंज होता है, तो आपको आइडिया लगेगा अगर कोई नया बदलाव आएगा तो आप उसको पकड़ सकेंगे। इंडिया को ओवरऑल अगर लेते हैं, महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर सर्विक्स है, एक्सेप्ट मेट्रो सिटी। यूजुअली प्रेजेंट करता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग एट क्वाइटस एंड एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। तो कोई भी ब्लीडिंग से संबंधित या मेंस्ट्रुअल साइकिल संबंधित एबनॉर्मल लक्षण हो तो उनको गाइड करें कि आप जाके टेस्ट कराइए। इट कैन बी कैंसर सर्विक्स। टेस्ट इज वेरी सिंपल, पैप स्मीयर। एक तो हम कर सकते हैं एज एन स्क्रीनिंग पर्पस। कब करना है पैप स्मीयर? स्क्रीनिंग पर्पस, मतलब किसी को कोई लक्षण नहीं है, 10 years after marriage और रेगुलर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑफ मोर देन 10 years, तो आपको पैप स्मीयर करना है। या कोई लक्षण आने लगे, जो लक्षण मैंने बताया, पैप स्मीयर करना है। अगर उसमें कुछ शक आता है, कंफर्म नहीं होता है, बायोप्सी कैन बी डन एंड इमेजिंग बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन विद ऑन्कोलॉजिस्ट। मेल में प्रोस्टेट कैंसर काफी कॉमन होने लगा हिंदुस्तान में, जो पहले नहीं था इतना। इसके लक्षण होते हैं बार बार पेशाब का आना, रुक रुक के पेशाब का आना, पेशाब रोकने में तकलीफ होना या पेशाब में खून का आना। ये कॉमन लक्षण है मेल कैंसर के। यूजुअली 50-55 साल के बाद ये कैंसर डेवलप होता है। इसलिए पीएसए, सीरम पीएसए ब्लड टेस्ट से प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसकी जांच स्क्रीनिंग में इंक्लूड कर ली गई है और 55 साल से अधिक की उम्र के लोग सीरम पीएसए अपना रेगुलर करा लें। 3 व्हीलर टू डायग्नोज प्रोस्टेट कैंसर, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन डॉक्टर करता है, सीरम पीएसए आप लैबोरेटरी में करा सकते हैं, और ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड अगर पीएसए बढ़ा है तो इसको करके चेक करना है। डिस्पेप्सिया कॉमन लक्षण है हिंदुस्तान में, गैस का बनना, मतलब जलन होना, पेट भारी रहना, खाना नहीं पचना या एसिडिटी होना। ये कॉमन तकलीफ है एसिडिटी की। लोग ओवर द काउंटर ड्रग लेते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन आप ले भी रहे हैं, अगर एसिडिटी परसिस्ट कर रही, डिस्पेप्सिया परसिस्ट कर रही है, इट कैन बी सिम्टम ऑफ स्टमक कैंसर। अर्ली स्टमक कैंसर में सिर्फ और सिर्फ डिस्पेप्सिया होता है, इसलिए बेसिक जांच होती है एंडोस्कोपी को, उसको कराना है। गॉल ब्लैडर कैंसर, अर्ली लक्षण डिस्पेप्सिया होता है। ओवेरियन कैंसर स्टेज 1, स्टेज 2, सिर्फ डिस्पेप्सिया मतलब ब्लोटेड फील होता है पेट और कोई भी तकलीफ नहीं होती। जब एडवांस होता है तब इसमें तकलीफ होती है। अब मैं आता हूं कारण पे। जो कॉमन कैंसर देख लिए, इसके अलावे जितने टाइप के कैंसर होते हैं, बैरिंग फ्यू, जैसे मैंने बताया जीन रिलेटेड या कंजेंटल जो बचपन से हो, इनको छोड़ के ये 5 से 10% लोगों में जीन रेस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए। रेस्ट 90 से 95% कैंसर आपके वातावरण में है। उसमें डाइट आपका 30 से 35% है, मतलब जो हम खा रहे हैं, मुंह से अंदर ले रहे हैं खाना और पीना, वो 30 से 35% कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टोबैको 25 से 30%, इन्फेक्शन 15 से 20%, ओबेसिटी मोटापा, अल्कोहल एंड अदर्स। इसको एक एक करके देखते हैं। कहा जाता है मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो जीन हमने माता पिता से लिया है और उस जीन के साथ वातावरण क्या मिलता है, इसी का रिजल्ट होता है। एनवायरनमेंट, जीन्स एंड चॉइसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट योर हेल्थ। कैंसर को कहा गया मॉडर्न एपिडेमिक, आधुनिक महामारी। कैंसर कैन हैपन टू एनीवन। ईवी कैन से हम बैठे हैं यहाँ पे, युवराज सिंह, मनीषा कोइराला, लिजा रे, सोनाली बेंद्रे, राकेश रोशन, ये अजय कुमार जो एमपी थे, नरगिस दत्त, इरफान खान, स्टीव जॉब्स, शरद पवार। ये दिखाने का पर्पस ये है कि नो वन इज इम्यून टू कैंसर। इसको न रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस किसी से मतलब नहीं है। इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इस तरह के वेबिनार करने का पर्पस क्या है? आज लोग के पास 4G 5G अवेलेबल है, हर चीज आपको मिल सकती है, तो ईवी कैन और पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी इतनी मेहनत करके क्यों एक्सपर्ट को बुला के प्रोग्राम कराती है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तो औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मित्रस्य च। जब आप विदेश में है तो विद्या जो हम सीख लेते हैं वही आपकी मित्र है,
भार्या मित्रम गृहेषु च, घर पे पत्नी आपके मित्र है, बीमार होने पे औषधि मित्र है, और अंत समय में जो आपने धर्म कर्म किया वही आपका मित्र है। चाणक्य ने कहा था पुस्तकेषु चय विद्या परहस्तेषु यतः धर्म उत्पन्नेषु च कार्येषु न स विद्या न तद्धर्म। पुस्तक में रखी विद्या और दूसरों के हाथ में गया धन जरूरत पड़ने पे आपके कभी काम नहीं आता। इसलिए कुछ अगर आज आप टेक होम मैसेज लेके घर चले जाएंगे, कुछ अपने घर में बदलाव करेंगे, हो सकता है आपके काम आ जाए, आपके जीवन में कुछ इससे फायदा हो जाए। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने शरीरा। ये 5 तत्व क्या क्या हैं? क्षिति पहले हम लेते हैं उसको, जो धरती से चीजें हमें मिलती है, खाने की चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें धरती से मिलती है। और हमारे पुराण में लिखा है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जब भगवान शिव भिक्षा के लिए गए थे तो उनको अन्न दिया गया था भिक्षा में। डाइट का इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन आज हिंदुस्तान के डाइट में क्या हो गया है, इसको मैं कहता हूँ फास्ट फूड कल्चर को न्यूट्रिशनल पॉवर्टी। अगर उसकी फूड एनालिसिस आप करके देखेंगे, प्रैक्टिकली अब जो खा रहे हैं उसमें खाने लायक ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसके लिए बच्चे भी आजकल दीवाने हो चुके हैं और बड़े भी खा रहे हैं कि समय कम लगता है, लेकिन आपको मिलता क्या है इस पे जरा गौर कर लें। इसको कहा गया जंक फूड। ऋषभ हमारे टेक्निकल से हैं, ये जानते हैं जंक का मतलब, जंक मेल उसको कहते हैं जो हमारे काम का नहीं है, और ये फूड जंक फूड है, इसको हम पेट में डाल रहे हैं। ऐसे खाने से मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी समस्याएं होती है। मॉडर्न मेडिसिन हमारा कहता है बहुत एसिडिक या फैटी फूड अगर खाते हैं, एसिडिटी, हार्टबर्न, हार्ट डिजीज और कैंसर होता है। श्रीमद् भगवत गीता में 17वें अध्याय में लिखा है कटु अम्ल लवण अति तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहिनी आहार राजस इष्टा दुख शोकमया प्रदा। बहुत कड़वा, बहुत अम्ल एसिडिक, बहुत लवण सॉल्टी, बहुत सूखा, बहुत रूखा खाने से दुख और शोक की प्राप्ति होती है, भगवत गीता में लिखा हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मेडिकल साइंस रिसर्च करता है, दोबारा ढूंढता है, मतलब ये चीजें कहीं थी दोबारा ढूंढ के निकाल रहा है। चाणक्य ने कहा था भोज्यम भोजन शक्ति च रति शक्ति वीरांगना विभो दान शक्ति च नाल पश्य तपसा फलम। किसी व्यक्ति को उचित भोजन मिल जाए, भोजन पचाने की शक्ति हो, और अगर दान देने की शक्ति हो, दे सके, किसी छोटी तपस्या का फल ना है। बाइबल में लिखा हुआ है गॉड हैज क्रिएटेड एडम, और उसको एक एडन गार्डन में रखा, उसको समझा दिया कि कहाँ करना है, और एक सर्टेन एरिया का बता दिया यहाँ का फ्रूट्स नहीं खाना है तुमको। बाद में गॉड ने कहा कि सारी चीजें बना दी हैं, अब तुम अपना पार्टनर ढूंढ लो। एडम वाज नॉट एबल टू फाइंड हिज पार्टनर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जेनेसिस रेफरेंस लिखा हुआ है चैप्टर 1 वर्स 27। देन गॉड क्रिएटेड ईव आउट ऑफ रिब एंड फ्लेश ऑफ एडम, इसलिए कहा वो मैन डिराइव फ्रॉम मैन इज वुमन। उसके बाद इनको ईव को सरपेंट सांप ने गुमराह किया और उसी गार्डन का फल खाने को मजबूर कर दिया। ईव ने खा लिया और फल लेके एडम के लिए आ गई। एडम ने मना किया कि मैंने मना किया था यहाँ का फल नहीं खाना है। फिर एज यूजुअल जैसे होता है, आज भी हम पत्नी के सामने झुक जाते हैं। एडम ने फल खा लिया, लेकिन क्योंकि गॉड ने मना किया होता, फल उसके गले में अटक गया। इसीलिए मेल को एडम सेप्पल होता है, गले में जो वॉइस बॉक्स के आसपास निकला होता है एडम सेप्पल कहते हैं। गॉड ने बोला कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने खाया, तो जितनी चीजें मैंने दी थी, फोरसाइटेडनेस, इंट्रोस्पेक्शन, सारी एबिलिटी तुमसे मैं ले रहा हूं वापस। यू विल बी जस्ट अ ह्यूमन। अब तुम्हें गॉडली तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं होगी, यू विल जस्ट लाइक अनदर एनिमल। ये बाइबल में डिस्क्रिप्शन है। मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी एपिक लें, कोई भी रचना लें, उसमें फूड की महत्ता हर जगह बताई गई है। भारत में व्यंजन की विविधताएं इतनी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरब से पश्चिम, अगर देखेंगे हर राज्य की कुछ न कुछ व्यंजन की विविधताएं हैं, और वो शुद्ध है, आपके लिए स्वास्थ्य वर्धक है। लेकिन इनको छोड़ के हम वेस्टर्न फूड पे शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे खाने में हाई फाइबर फूड, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये जरूर समस्या है। 2016 में जी न्यूज पे एक सीरीज चली थी कैंसर की थाली, जिसमें दिल्ली में मिलने वाली सब्जियां पॉइजनस थी। यमुना खादर की सब्जियां, कृष्णा काली हिंडन के नदी के किनारे की सब्जियां, इसको आपको चेक करके रखना है कि कहाँ से सब्जी ले रहे हैं, कहाँ की सब्जी खा रहे हैं, जो पॉइजनस ना हो। सब्स्टिट्यूट मैंने बताया था, लोग पूछते थे कि सर आपने बता दी इतनी समस्या है, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्या है? बालकनी फार्मिंग। बालकनी में गुलाब के पौधे आप उगाते हैं, चमेली बेले के पौधे उगाते हैं, उसकी जगह आप सब्जियां उगाएं। एक फैमिली के लिए, खास करके आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है,
सफिशिएंट सब्जी उग जाती है। एक बार ट्राई करके देखें। अगर किसी को मॉडल समझना है कैसे हम उगा सकते हैं, मैं मॉडल दे दूंगा। खाना कब खाना है, भूख और वासना में अंतर समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड लस्ट। भूख लगी है, खाना दो, ये हमें सिग्नल आता है। और खाना तभी खाना चाहिए, इस मुहावरे से आप समझ, भूख न देखे जूठी भात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात। अगर ऐसी भूख लगी तभी खाना खाएं, अन्यथा खाना ना खाएं। होता क्या है, वासना किसे कहते हैं? आप अपने कॉरिडोर से गुजर रहे थे ऑफिस पे, समोसे की खुशबू आई, पिज्जा की खुशबू आई, आपने जाके उठा लिया। ये खाने की जरूरत नहीं, ये आपका ओवरवेट करेगा, ओबेसिटी करेगा और अन्य बीमारियों को आमंत्रित करेगा। शुद्ध भारतीय भोजन में क्यों कह रहा हूं बार बार, इसमें ज्यादा फाइबर है, एंटी कैंसर है, हरी सब्जी एवं फल एंटी कैंसर है, हल्दी एंटी कैंसर है। मेरा पेपर पब्लिश हो गया इंटरनेशनल बहुत साल पहले, P53 हाइपरमेथाइलेशन को रिवर्स कर रहा है। अजवाइन, लौंग, अदरक, लहसुन औषधि का काम करता है। क्षिति के बाद मैं आ रहा हूं जल पे। जल ग्रहण, कितना पानी पीना चाहिए, पानी क्यों पीना चाहिए? पहले पानी निःशुल्क था, अब नहीं है, अब खरीदना पड़ता है। शुद्ध था, प्योर था, विष रहित, डिटॉक्सिफाई करता था बॉडी को। इसलिए रिकमेंडेड था कि जितना वजन है आपका, उसका 1/20वां हिस्सा पूरे दिन में पानी पिए। जैसे 60 किलो का इंसान लगभग 3 लीटर पानी पिए, 80 किलो का इंसान 4 लीटर, इतना पिए, तब जाके उसके बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे और कैंसर जैसी बीमारियों से बचेगा। लेकिन आज की स्थिति क्या है? मैं मेरी पैदाइश गंगा के तट पे हुई थी, परवरिश हुई, बचपन से मैंने ये देखा, सामने गंगा, बगल में गौशाला, बागीचा। एक बार मैं दिल्ली, मेरी फ्लाइट लैंड करने वाली थी, मैं ढूंढ रहा था मेरा घर कहाँ पे है। दिल्ली में नदी दिखी, न तालाब, न बागीचा, सिर्फ कंक्रीट जंगल, टिमटिमाती बत्तियां, बड़ी बड़ी इमारतें। तभी मैंने एक रचना लिखी थी, उसकी बीच की 4 पंक्तियां आपको समझा रहा हूं, आप समझ सकते हैं दिल्ली में हम किस तरह से रह रहे हैं। पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, ना थी गैया, ना था बछड़ा, ना था बागीचा मेरा। क्षीर बंद था, दूध पैकेट में है, नीर बंद था, पानी बॉटल में है। क्षीर बंद था, नीर बंद था, और बंद किस्मत मेरा, ना थी हरियाली यहाँ, ना था वो दरिया मेरा, ना था वो दरिया मेरा। पानी पीने का समुचित समय, सुबह जगने के बाद 2 गिलास पानी पी लें। रात को जो भी मेटाबॉलिज्म हुआ है उसको डाइल्यूट करके यूरिन के रास्ते निकाल देगा। स्नान करने से पहले 1 गिलास पानी पिए। दोपहर के खाने से पहले पानी पी लें। खाने के 2 घंटे बाद पानी ना पिए, ताकि डाइजेस्टिव जूस खाने पे काम करे, डाइल्यूट ना हो सके। सूर्यास्त के समय पानी पिए और सोने से पहले पानी जरूर पिए। अगर इतना भी आप फॉलो कर लेते हैं तो 3 से 4 लीटर पानी आपका चला जाएगा, और इसके बाद भी इच्छा हो तो आप पानी पी सकते हैं। रिकमेंडेशन क्या है? फिल हाफ स्टमक विथ फूड। ये कुरान की एक आयत है जिसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताया है कि आधा पेट खाना खाएं, 1/4 पानी पिएं, और 1/4 गैस के मूवमेंट, जो चर्निंग फूड का होगा उसके मूवमेंट के लिए 1/4 आप छोड़ दें। हमारे आयुर्वेद की किताबों में भी लिखा, योग रत्नाकर में, उदर के 2 भाग भोज पदार्थ से भरें, तीसरा भाग जल से पूरा करें, और चौथा भाग वायु संचारण के लिए छोड़ देना चाहिए। इस तरह से फॉलो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हम लोग खाना खा लेते हैं जो थ्रोट तक आता है, न पानी की जगह न गैस मूवमेंट की जगह। क्या हो गया है आज? मॉडर्न मैन स्टमक। सुबह जगने पे थायराइड की गोली, डायबिटीज की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, डॉक्टर ने फिर पर्ची बना दी, दोपहर को गोलियां, रात को गोलियां। अब इस सिचुएशन में इंसान कहाँ खाना खाए, कहाँ पानी पिए? क्या ये संभव है मॉडर्न मैन स्टमक को नॉर्मल एम्प्टी स्टमक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? संभव है। आप अपने जीवन शैली के बदलाव से इसको नॉर्मल कर सकते हैं, आपकी गोलियां बंद हो सकती हैं, सच्चाई है। गुटखा कहा गया कलर्ड एंड फ्लेवर्ड पॉइजन। ये सारी चीजें हैं जो एक भी यूजफुल नहीं है, सारी आपकी कैंसर फॉर्मिंग है। गुटखे के बारे में जब मैंने लिखा था तो लिखा था, बट गया ये हिंदुस्तान, गुटखा बीड़ी खैनी पान इनमें उलझ गया इंसान। जब लोगों ने सुना तो कहा, कहाँ बटा हिंदुस्तान, तो मिला हुआ है। मैंने कहा, सीमा की रेखाओं को न देखो, वहां तो चलते तीर कमान, बट गया है हिंदुस्तान, अंदर अंदर बटा हुआ है। अब पीने की चीज में दूसरा है अल्कोहल, रंगीन पानी, जिसको आमतौर पे शराब, हाला, मदिरा कहते हैं। जितने लोगों से मैंने पूछा उसको समराइज करके मैं आपको बताता हूँ, 3 चीजें मिलती हैं जिसके कारण लोग शराब पीते हैं। पहला, आई एम द किंग, चाहे कितनी भी मुसीबत हो। दूसरा, ऑल इज वेल। एंड तीसरा,
नो टेंशन। गुजरात में यूजुअली मुझे लोग कहते थे नो टेंशन, बिंदास है भाई। तो यही 3 चीज है जिसके लिए ये पॉपुलर है। अल्कोहल से टॉप टू बॉटम इतने टाइप के कैंसर हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हरवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी ने एक रचना लिखी थी मधुशाला, उसमें उन्होंने शराब के बारे में लिखा, आप तो मना कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए इस रचना की कुछ पंक्तियां डाल दी, जिसमें बीच की पंक्ति को जो रेड से आप पढ़े, मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, हाला मतलब शराब, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। उन्होंने कभी शराब की बात नहीं की थी, समाज में प्यार, मोहब्बत, मधुरता, इसकी बात की थी, इसलिए मधुशाला इस पे नहीं लिखा हुआ है। गांधी जी ने कहा था अल्कोहल इज नॉट द आंसर टू लाइफ क्वेश्चन। तो विजय माल्या ने जब किंगफिशर लॉन्च किया तो उन्होंने महात्मा गांधी को कोट करते लिख दिया, एटलीस्ट इट हेल्प्स यू टू फॉरगेट द क्वेश्चन। तो मैंने जब प्रेजेंटेशन चालू किया तो मैंने भी दोनों को कोट कर दिया, मैंने लिखा एटलीस्ट यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन सर्च फॉर द आंसर, चॉइस इज योर्स। डिमोनेटाइजेशन के बाद महात्मा गांधी आपके नोट पे अभी भी हैं, विजय माल्या नोट लेके भागे हुए हैं, देख लीजिए किनको आपको आइडियल बनाना है। मानव का विकास हुआ, चौपाया से दुपाया हुआ, आज फिर वो बैसाखी लेके, बैसाखी किस चीज की, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इसकी बैसाखी लेके फिर उसको चलने की जरूरत हो रही है। कॉन्शियस माइंड सेंटर में है, रेड लाइन पे। अल्कोहल ब्रिंग्स यू टू सबकॉन्शियस माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स यू टू द सुपर कॉन्शियस लेवल। चॉइस इज योर्स, किस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं। खाने पीने से आप अपने पेट को इसी तरह से कर रहे हैं। ये कोणार्क टेम्पल भुवनेश्वर का एक कुआं है, जिसका माना जाता है इसके पानी से अगर किसी को स्किन डिजीज है, नहला दें तो स्किन डिजीज खत्म हो जाती है। लेकिन इंसान ने क्या किया, इस कुएं के साथ गंदगी डाल के, कचरा डाल के इस कुएं की हालत खराब कर दी। सेम तरीके से अगर हम अपने पेट में, ईश्वर ने बहुत कैपेसिटी दी है, लेकिन बार बार अगर गंदगी डालेंगे, कचरा डालेंगे, तो एक समय हमारे पेट की हालत यही हो जाएगी जो इस कुएं की हुई। Every time you eat or drink, you are either feeding disease or fighting for it. तो समराइज करके क्षिति जल को क्या है, खाना पीना, शुद्ध भारतीय भोजन, हरी सब्जियां, फल, ये खाना है, ये पीना है। क्या नहीं, खा ना, पी ना, फास्ट फूड, कुरकुरे, चिप्स, गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट, बीड़ी। मेरे फाउंडेशन के एक मेंबर थे, उन्होंने जब प्रेजेंटेशन सुना तो बाद में स्लाइड मैंने इंक्लूड की, उन्होंने पूछा कि ये भी कोई जिंदगी है सर, आपने सब छोड़ा दिया। मैंने 2 तस्वीर लगाई। लेफ्ट में बरगद का पेड़ है 400 साल पुराना, जिसपे टूरिस्ट आते हैं, उसके नीचे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, गिविंग शेल्टर टू अदर्स। और ये एक बहुत बड़ा कछुआ है, लगभग 100 किलो का, ये मरा है, जीवित है, किसी को पता नहीं चल रहा है। तो मर मर के जीना, तो आप बीमार होकर अगर रहेंगे तो दूसरों के लिए क्या जिएंगे, अपने लिए क्या जिएंगे, समाज के लिए क्या जिएंगे। चॉइस आपकी है, आप शेल्टर देना चाहते हैं या मर मर के जीना चाहते हैं। एक समस्या भारत की बनी है मोटापा। बच्चा जब जवान होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जैसे से बढ़ता है उसका मध्य प्रदेश, बिल्कुल पेट वाला हिस्सा, मध्य प्रदेश बड़ा होने लगता है, उत्तर प्रदेश दिमाग से खाली होने लगता है, दक्षिण प्रदेश पांव लड़खड़ाने लगता है, फिर नी रिप्लेसमेंट की उसको जरूरत हो जाती है। मोटापा एक बीमारी है। हिंदुस्तान में 2 ही बीमारी है, मैल न्यूट्रिशन जिसमें कुपोषण है, या मोटापा। साइंटिस्ट हमारे शोध में लगे हुए हैं कि टमी को कैरी करने के लिए कोई ट्रॉली बनाई जाए, क्योंकि मोटापा इतना कॉमन हो रहा है, इससे भी कुछ बाजार निकाल लिया जाएगा। ऐसा हुआ क्यों? दिनचर्या देखिए, ये हमारे लेफ्ट में तस्वीर हमारे दादाजी के समय की है। सूरज की पहली किरण निकलती थी, अपनी दिनचर्या पूरी करके, वॉक करके, मॉर्निंग वॉक करके लौट रहे होते थे। आज 10 बजे का समय है, बाप सो रहा है, बेटा सो रहा है, तो आपकी दिनचर्या बदल गई, जीवन शैली सारी बदल गई, ऋतुचर्या बदल गई, इसलिए ये इस तरह की तकलीफ हो रही है। खास करके दिल्ली में आपका जीवन, लाइफ हैज बिकम ए कंपास, ऑफिस घर, घर ऑफिस। इसके अलावा अगर दिल्ली की कुछ इंटरटेनमेंट की जगह है, 3M, मूवी, मॉल, मदिरा, इसी 3M में, इस कंपास के बीच में आप उलझते रहते हैं, घर ऑफिस, ऑफिस से 3M, 3M से घर, यही आपका जीवन है। रॉन्ग डाइट, टोबैको, ओबेसिटी, अल्कोहल, अगर ये चारों चीजें आपके जीवन में हैं, इट कैन लीड टू कैंसर। पुअर हाइजीन, पुअर माउथ हाइजीन, पुअर हैंड हाइजीन, कॉन्स्टिपेशन, पुअर प्राइवेट पार्ट हाइजीन, इससे सर्वाइकल कैंसर, माउथ कैंसर होने की संभावना रहेगी। सर्वाइकल कैंसर प्रोटेक्शन के लिए कैंसर वैक्सीन आ गया है। रेगुलर एक्सरसाइज, लोग कभी कहते हैं कि
रेगुलर नहीं कर पाते एक्सरसाइज, मैं उनसे समझाता हूँ गुड हैबिट्स आर एज एडिक्टिव एज बैड हैबिट्स एंड लॉट मोर रिवॉर्डिंग। एक बार कोशिश कीजिए, आप इसको इनकलकेट कीजिए आपके लाइफ में कि आपके लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। एक बार कन्विंस होके आप अपने को समझा लेंगे, ये पॉसिबल है। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखें। भगवान ने नेचुरल एंट्री पोर्टल एक दिया, मुंह से ही कुछ खा सकते हैं, लेकिन उससे बनने वाले टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स निकालने के लिए 4 रास्ते दिए, मल, मूत्र, पसीना और सांस। आप स्टूल चले जाते हैं, यूरिन पास कर लेते हैं, लेकिन कितने लोगों को नेचुरल कोर्स पे पसीना निकलता है? मतलब आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना निकल रहा हो, ये जरूरी है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स निकालने के लिए। और सांस तेज चलना, कुछ देर के लिए जब प्राणायाम कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, सांस तेज चलना, ताकि लंग्स के रास्ते सारे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स निकल जाएं। 1:4 का रेशियो है। अगर इसको पूरी तरह निकालेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर इसमें टॉक्सिन्स अंदर जमा रह गया किसी भी एग्जिट पोर्टल से, तो ये आपके बीमारी का कारण बनेगा। एयर पॉल्यूशन मेजर इशू है। आए दिन हर बार हम लोग अक्टूबर से लेकर जनवरी तक डिस्कस करते हैं, फिर शांति आ जाती है। इसमें इंडिविजुअल लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते, हम बता सकते हैं, जागरूक करा सकते हैं लोगों को। गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली इसको लेना पड़ेगा, ये बहुत बड़े बीमारी का कारण बना हुआ है। मोबाइल एक बीमारी है, एक टूल नहीं है, एक बीमारी है। पहले इंसान चलित था, फोन स्थगित था जब लैंडलाइन का जमाना था। आज फोन चलित हो गया, इंसान स्थगित हो गया। ऑफिस में फोन, शौचालय में फोन, शयन कक्ष में फोन, गर्भवती महिलाओं के पेट पर फोन, तकिए के नीचे फोन, वाहन चलाते समय फोन, मंदिर में फोन। मंदिर शब्द संस्कृत से निकला था, इसका मन था जहां मन और इंद्रिय काबू में आ जाए उसे मंदिर कहते हैं। मंदिर में भी फोन। क्या हुआ है मोबाइल से? नजदीकियां बढ़ी है या दूरियां बढ़ी है? एक्चुअली हो रहे हैं रिश्ते खराब। राइट में पुराने जमाने की तस्वीर है, जब आप ऑफिस से घर से लौटते सब लोग साथ में बैठ के बातचीत करते थे, अपना मन हल्का कर लेते थे। आज आधुनिकीकरण के युग में 4 दोस्त बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, चल रहे हैं, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और वीडियो, यूट्यूब, इन सब पे लगे रहते हैं। ये आपका जीवन नहीं है, ये आपके जीवन को दूर ले जा रहा है, लोगों से, सच्चाई से दूर ले जा रहा है, काल्पनिक दुनिया में ले जा रहा है, और आप उसमें उलझे रहते हैं। टेक्निकली रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलता है जो चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अनिद्रा, और डब्ल्यूएचओ की स्टडी चल रही है कि ट्रेंडिंग है ब्रेन ट्यूमर का चांस बढ़ा है। अभी 30 साल होने को हैं, 30 साल होने पे इसका रिजल्ट पब्लिश होगा। अगर बढ़ा होगा तो हम लोग आपको बताएंगे। बहुत सारे टीवी डिबेट आ रहे हैं कि मोबाइल टावर कितना हानिकारक है, मोबाइल कितना हानिकारक है। डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन अभी तक ये है, जहां तक हो सके लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल कीजिए। एक दिन में अधिकतम 30 मिनट मोबाइल का इस्तेमाल करें। लो बैटरी, लो सिग्नल हो, इस्तेमाल ना करें। मोबाइल गर्म होने लगे, इस्तेमाल ना करें। और ड्राइविंग के समय मोबाइल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नींद आज क्या है, हर समय कंप्यूटर या मोबाइल पे आप लगे हैं। ये मेडिकल चार्ट है किस तरह से स्लीप डिप्रिवेशन, नींद की कमी कैंसर का कारक बन सकता है। अल्टीमेटली डीएनए डैमेज होता है, रिपेयर नहीं हो पाता है और कैंसर हो जाता है। आपकी नींद बिल्कुल साउंड स्लीप होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस सरसों का खेत, क्लीन साउंड स्लीप। सुबह जब जगे तो बिल्कुल फ्रेश जगे। आज हम तकनीक के सामने इतना झुक गए। मेरे पिताजी बचपन में कहा करते थे, जिस बुलंदी पे जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी को पाना न चाहिए। रीढ़ की हड्डियां भी चटकने लगे, सर को इतना झुकाना न चाहिए। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाएं, न कि टेक्नोलॉजी का आप गुलाम बन जाएं। कुछ हिडन एंड अननोन फैक्ट्स आपको बताता हूँ। यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स, आज देख लीजिए इस तस्वीर को, आपके घर में हर जगह प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक से किस तरह से आपको डैमेज कर रहा है। आज इस तरह के बर्तन आपके उठा के रख दिए गए हैं, एंटीक पीस बना के शोकेस में। मेरी ही तस्वीर है, आपको आश्चर्य लग रहा होगा, सभी को लगता है, लोग कहते हैं बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, आप अपनी प्लेट लेके चलते हैं पीतल की। मुझे नुकसान नहीं है इसमें, एक थैला एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है। अपनी प्लेट पीतल की रखिए घर में, बाहर भी जाए तो अपनी प्लेट लेके जाइए। क्यों प्लास्टिक में खाना खाते हैं, उसका कारण आप समझिए। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बिसफॉस्फोनल ए, BSA और थैलेट्स 2 केमिकल निकलते हैं, प्लास्टिक से लीच आउट करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लो स्पर्म काउंट इन मेल्स, थायराइड प्रॉब्लम्स इन फीमेल्स। आज देखिए कितना थायराइड प्रॉब्लम कॉमन हो चुका है, और लंबे समय के इस्तेमाल के बाद कैंसर होने की संभावना रहती है। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल आज से बंद कीजिए। अगर फ्रिज में पानी की बोतल है, गर्म करने में माइक्रोवेव का बर्तन हो, या कोई भी अटेंसिल्स हो, अगर फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं हो तो उसको हटा दें। माइक्रोवेव, बहुत सारी स्टडी कह रही है माइक्रोवेव के अत्यधिक इस्तेमाल से कैंसर की संभावना बढ़ी है, लेकिन इस पे अभी शोध पत्र बहुत सारे पब्लिश नहीं हुए हैं, इसलिए गारंटी के साथ नहीं कहना। तो अभी एटलीस्ट ये हम कर सकते हैं
जितना हो सके कम से कम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें आप। इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स बहुत बड़ा कारण है, पंजाब में बहुत सारे एरिया इससे अफेक्टेड हैं। फ्रूट रैटनर, कार्बाइड, इथाफेनॉल या सब्जियों को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटेसिन का इस्तेमाल किया, दीज आर कार्सिनोजेनिक। तनाव, पावक, क्रोध, एंजाइटी, जेलस, रिवेंज, डिप्रेशन, इस तरह की जो फीलिंग है आमतौर पे हमारे अंदर क्यों आती है? पूछ। हम कहीं जाते हैं, किस तरह से हमें वेलकम किया गया, किस तरह से आदर किया गया, और पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी में तो मैं मानता हूँ 100% होता होगा। दूसरा, पूछ। हम कहीं से निकल जाते हैं, हमारा अहंकार अहंग वहीं रुका रहता है, भैंस की पूंछ वहीं अटक जाती है, भैंस निकल जाती है। इसी में हम उलझे हुए हैं और हमने अपना बचपन स्वच्छंद उन्मुख तनाव रहित जैसे जी लिया। क्या आज हम वैसे जी पा रहे हैं? क्या हम कोशिश नहीं कर सकते एक बार इसी तरह से उन्मुक्त जीवन जीने का? एक बार करके तो देखें। हर समय हमारे अंदर यही होता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, हर समय समस्या है। प्रॉब्लम इज नथिंग बट इज रिएक्शन टू एन एक्ट इज ए प्रॉब्लम। आप उसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। फियर फैक्टर, मैक्सिमम लोग आज भय में हैं, कुछ लोग दुस्साहसी हैं जो निर्भय है। आपको अभय बनना है, न कि भयभीत रहना है, न दुस्साहसी होना है, अभय की स्थिति में आना है। ये मेरे मित्र हैं, यहीं बड़े कारोबारी हैं, इनके लिए हंसना मना है। मैंने पूछा क्यों नहीं हंसते हो, तो इनका ये कहना है कि लोग काम नहीं करते हैं, अगर मैं हंसता हूँ लोग मुझे लाइटली लेते हैं। कहा जाता है अर्था भवन्ति गच्छन्ति लभ्यते च पुनः 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 कदापि न आयति गतम तु न यौवनम। अर्थ मीन्स धन। धन आप प्राप्त कर लेंगे, नुकसान हो जाएगा, फिर प्राप्त कर लेंगे। पुनः कदापि न आयति गतम तु न यौवनम। एक बार आपको जीवन मिल गया, ये अगर चला जाएगा दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हर मोमेंट को, एक एक पल को जी लीजिए, एंजॉय कीजिए, यही आपका जीवन है। ओशो ने कहा था हंसना एक महाऔषधि। हंसने के व्यक्तिगत फायदे क्या हैं? शारीरिक फायदे, हेड एंड नेक एरिया में जो मांसपेशियां हैं आपकी, इसकी एक्सरसाइज होती है। इसके लिए कोई जिम में कोई डंबल नहीं बना, कोई ट्रेडमिल नहीं बना, और इसको एक्सरसाइज अगर हंसने से आप करा लेते हैं तो चेहरे पे झुर्रियां लेट से आएंगी। मानसिक फायदे, ब्रेन में डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन निकलता है जो आपके एंजाइटी को, डिप्रेशन को नहीं होने देता है। सामाजिक फायदे, आप अगर हंस के बातचीत करते हैं तो आसपास लोग आपके बिल्कुल फैन फॉलोअर हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं। ये आपके सामाजिक फायदे हैं। और पारंपरिक फायदे, माना जाता है जहां हंसने का माहौल होता है वहां पे पॉजिटिव एनर्जी होती है, धन धान सुख संपत्ति का आगमन होता है। तो करके देखने में हर्ज नहीं, एक हफ्ते करके देखिए ऐसा माहौल। नहीं फायदा हो आप फिर से सीरियस रह लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे हंसने का कोई मतलब नहीं है। मेरे सोसाइटी के पीछे एक पार्क है, वहां सुबह लोग 6:50 बजे जमा होते हैं, खूब हंसते हैं, 7 बजे तक हंसना बंद हो जाता है। मैंने एक दिन तस्वीर ली इनकी, मैंने पूछा कि ऐसा आप क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया कि 23 घंटे 50 मिनट मुझे नहीं हंसना है, क्योंकि ऑफिस में लोग काम नहीं करते हैं। अगर हंसता हुआ घर लौटता हूँ तो पत्नी कहती क्या हुआ है, बाहर लगता है कुछ जरूर अच्छा हुआ तुम्हारा, हंस रहे हो। तो इसलिए मैं हंस के इसका कोटा पूरा कर लेता हूँ। ऐसे हंसने का कोई फायदा नहीं है। लव योरसेल्फ, खास करके जितनी लेडीज अभी सुन रही हैं उनसे मैं कहूंगा, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें दूसरों से रहती हैं। किसी से मत उम्मीद कीजिए, बेटे से नहीं, पति से नहीं, किसी से उम्मीद मत कीजिए। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, पहले अपने आप से मोहब्बत कीजिए। देखिएगा एवरीबॉडी विल फॉल इन प्लेस। आपका ऑरा ऐसा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होगा, सभी लोग आपको चाहने लगेंगे। बी स्पॉन्टेनियस, अगर कोई ऐसा काम करने की इच्छा हो जिससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, कर डालिए। ये मुझे बंगाल बुलाया हुआ था, वेस्ट बंगाल में एक लेक्चर के लिए, गायत्री परिवार वालों ने। वहां पर मैंने देखा गौशाला है, चारा काटने की मशीन थी। 32-35 साल बाद मैंने मशीन देखी थी। मैं काटने लगा, लोगों ने तस्वीर खींच ली कि डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, कपड़े खराब हो जाएंगे। मैंने कहा कपड़े धुल जाएंगे लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा मुझे। बी स्पॉन्टेनियस इन लाइफ। डेवलप हॉबी, हॉबी का है स्पेयर टाइम एक्टिविटी। आज क्या है, नो टाइम टू स्पेयर और स्पेयर टाइम फॉर नथिंग। गॉसिप्स, टेलीविजन, इसमें आपका टाइम जाता है। अगर आप कर सकते हैं, गार्डनिंग, क्लीनिंग ऑफ द सोसाइटी, गो टू हॉस्पिटल, हेल्प अदर्स। आपके बात करने से बहुत मरीजों का मोरल सपोर्ट हो जाएगा। सोशलाइज विथ योर फ्रेंड्स, जाइए अपने मन की बात कीजिए, मन हल्का होगा। फॉरगिवनेस, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भुजंग काला नाग, गरल विष। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। फॉरगिवनेस कीजिए। पुराण में कहा गया है, वेद व्यास ने 18 पुराण का सारांश बता दिया, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों पे उपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। डेवलप सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम लाइए।
इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण, सोने से पहले एक बार 5 मिनट आत्मविश्लेषण करके सोइए कि क्या क्या आज मैंने किया, क्या गलत किया, अगली बार नहीं करूंगा, और अगर कुछ अच्छा किया नेकी कर दरिया में डालो। जोहारी विंडो पे डिटेल चर्चा होगी, कभी मैं बताऊंगा। इसमें एक आपका ब्लाइंड स्पॉट है, नीदर नोन टू यू नॉर नोन टू द सोसाइटी, उसको एक्सप्लोर कीजिए, आपका हिडन पोटेंशियल खुल के बाहर आएगा, यू विल टोटली ट्रांसफॉर्म पर्सन। वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। आमतौर पे हम अतीत में उलझे रहते हैं, भविष्य की चिंता में रहते हैं, और वर्तमान की परिभाषा है भविष्य के गर्भ से निकलकर अतीत के गर्भ तक जाने की दशा को वर्तमान कहते हैं। ये मोस्ट फ्लूइड स्टेट ऑफ द यूनिवर्स है, मोस्ट डायनेमिक स्टेट। द मोमेंट यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट, फ्यूचर विल कम, बिकम प्रेजेंट एंड गो टू द पास्ट। इसमें अगर आपने जी लिया, आपका जीवन बदल जाएगा। जापानीज एक कल्चर है मैम, जो जापान हिस्ट्री की थी, उनके लिए स्पेशल। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा टाइम रन आउट कर रहे हैं। मैम मेरे ख्याल 2-3 मिनट में हो जाएगा। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई, जहां लव, मिशन, वोकेशन एंड प्रोफेशन सब एक करके और ये जी रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है जापान का, द आर्ट ऑफ मेकिंग मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट, इचिगो इची। यही कहता है प्रेजेंट में जियो। ईस्ट वर्सेस वेस्ट में डिफरेंस यही है, पश्चिम आपको ज्ञान देता है, विज्ञान, लेकिन आत्महत्याएं ज्यादा होती है। पूरब आपको, हमारा भारत, परम ज्ञान, आत्मक्रांति और आत्म साधना देता है, दोनों को मिलाने की जरूरत है। यू कैन डेवलप हैबिट ऑफ प्राणायाम। 3 स्टेट में आप रह सकते हैं, आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति। अगर आप अनासक्त की स्थिति में रहना चाहते हैं, आंसर इज गॉड। G stand for generator, O for operator, D for destroyer. Be Brahma of yourself in the morning, plan your day. Be operator in the daytime, विष्णु की तरह काम करें, and be destroyed in the evening. शिव की तरह अपने एंजाइटी, जेलस सबको खत्म करके तब घर पहुंचे। बॉडी के लिए समराइज कर दे रहा हूँ, क्या क्या चाहिए। डूज, शुद्ध भारतीय भोजन, स्वच्छ जल, व्यायाम, नींद, हाइजीन। डोंट डू फास्ट फूड, टोबैको, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस। माइंड के लिए डेवलप पॉजिटिव इमोशन, एंड सोल के लिए कनेक्ट योरसेल्फ टू सुपर पावर, थिंक यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ एट द एंड ऑफ योर लाइफ। इंसान की जरूरतें, मन की शांति, सुपाच्य भोजन, चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य को इकट्ठा करने में जाया करते हैं। जरूरतें बहुत कम है, जिंदगी बहुत सीमित। अगर ऐसा करते हैं तो आपको सच्चित आनंद की प्राप्ति होगी। अब वर्कशॉप के हिसाब से मैं आपको 3 स्लाइड दिखा देता हूं। घर पे जाके आप ऐसे बैठ के देखिएगा, ये बॉडी के लिए है, कितने फिट हैं। बॉडी के लिए अगर ये कर लेते हैं, फिट हैं। माइंड के लिए द पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, अगर आप जी रहे हैं, माइंड के लिए ठीक है। एंड सोल के लिए एक सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए, हु आर यू। बस आखिरी स्लाइड है। पूरे चर्चा को समराइज करने के लिए एक कविता मैंने लिखी है, आपको सुना देता हूं। इंसान की आदत है, जो मिल जाता है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, जो नहीं मिलता उसके लिए भागता रहता है। जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो पा न सके वो सोना है। निर्मल मन हो जा रे मानस, सब कुछ एक दिन खोना है। माया और प्रपंच भंवर में निर्भर किस पर होना है। कर सको कुछ कर ले बंधु, नित दिन तेरा रोना है। पीछे छोड़कर रिश्ते नाते पंच तत्व में जाना है। राम नाम का बीन बजाकर बस स्वाहा हो जाना है। फिर भी उलझन क्लिष्ट जीवन और तेरा कटु व्यवहार। चित्त भेदती, हृदय चीरती, तीक्ष्ण रुक्षण और नरसंहार। समाधान है, सरल सादगी जीवन यापन, नित दिन ना हो मारंबार। प्रेम भाव, दया कर्म, सहिष्णुता और परोपकार। प्रकृति स्नेह, मधुर वाणी, संतुलित और सरल विचार। मझधार ना आएगा आड़े, हो जाएगी नैया पार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। लग नहीं रहा था कि हम एक ऑन्कोलॉजिस्ट की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। आपने तो पूरा जिंदगी का सार ऊपर से नीचे तक सब समझा दिया। आई थिंक सच पूछे तो आई थिंक वी नीड अ फुल डे वर्कशॉप विद यू टू अंडरस्टैंड। आपने इतनी सिंप्लिसिटी से सब कुछ समझाया है। मेरे को इनफैक्ट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन जहाँ आपने वो टेररिस्ट बना दिया कैंसर सेल्स को, तो मुझे अपनी जर्नी याद आ गई। सो थैंक यू। अगर आप ज्यादा बिजी नहीं हो तो प्लीज थोड़े समय और जुड़े रहिएगा, हम कुछ कैंसर सर्वाइवर से बात करके और फिर क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। थैंक यू सो मच। सो नाउ from Dr. Anshuman's presentation, we move to Mrs. Sangeeta Gupta. She is a cancer survivor like I am, and she survived cervical cancer. She's a freelance writer and editor, and a mother of 2 daughters.
And I really love what she has written about herself, that it's not the load that breaks you, it is the way you carry it. And I think for us people, the way we carry the load of cancer and finally get it off our heads, I think that's what matters the most, right, Sangeeta? Yes, So, very true. so welcome to the show, and thank you for being with us. And I would like to just ask you to some very simple questions, and just tell us a little more about yourself, Sangeeta, and what happened, in your life when you discovered that you had cervical cancer. Okay, thank you, Dr. Poonam, for giving me this opportunity, because I really want people to benefit from what I have suffered, and I would really want people to take precautions and be very aware of the changes in their body so that they don't have to face what we both have been through. Okay, so actually, I have been in the education field. I have been a teacher, and then I was working in a publishing house as an editor. And I retired from there in 2020. I was like heading the department. I was the vice president in a publishing house, looking after the school book division. And now I'm a freelancer. So I got cancer in 2002, basically 19 years back, when I was only 38 years old. And as any other cancer, there was no symptom. And I was not really aware that there was a cancer called cervical cancer, to be very honest. And I just started getting some foul smelling discharge. And then, there was acute lower back pain. So these two things were a little alarming, but it was like Diwali time and everything. And like all other females, like, you tend to overlook your problems because there is so much at hand. And when you're working, then you're double involved in everything. तो मैंने उसको ignore किया थोड़ा सा, मतलब not much. फिर वो धीरे धीरे थोड़ी